So what topic that I have covered in previous lecture? Anybody? Hello. Nested if. Nested Yes, if statement. nested if and then nested for loop. Yes, and also done some examples regarding nested for loop. I have also given as a one homework, and some of the students have also done that and share me the screenshot regarding the same. So others also do the practice regarding that nested for loop at your home. Okay, if you have any doubt, you can ask. And also one of the example you can do for that nested if or nested if else as a practice. Okay, am I clear? Hello, am I clear? Yes, sir. Okay, okay. So can we move forward? Yes, sir. Can we move forward? Okay, okay. So next topic, Abhi, now we are done with the decision control statement with respect to that Python, that is we have seen that for loop, then while loop, then break statement, then continuous statement, pass statement, nested for loop, then control decision control statement में हमने starting में देखा था if else and elif, all three statement that we have covered, and some of the examples regarding that specific topic that also we have covered. Okay, and also some homework that I have given for you regarding that topics. Okay, so write one homework regarding these topics, another homework. All of you write down the title. Write a program using for loop. Write a program using for loop to calculate factorial of a number. Write a program using for loop to calculate factorial of a number. All of you clear with the problem statement? Yes, sir. Okay, so what you have to do now? You have to take one number as an input, and for that input you have to calculate the factorial of that number. For example, factorial of 5 is what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, na? Yes or no? 1. Yes, 120. Yes. So if you are entering the answer input as a 5, then your answer must be 120, must be displayed as per your input. Okay. If you are entering 5, their answer is 120. Likewise. Okay. So that homework you have to give done at your home using for loop. And second problem statement is write down. Write a program that display. Write a program that displays all leap years from 1900 to 2101. From 1900 to 2101. Write a program that display all leap years from 1900 to 2101. All of you clear with the problem statement? Yes or no? तर ती पहिली वाली हाँ पहिलं काय काय हॅलो पहिली वाली प्रॉब्लेम स्टेटमेंट परत सांगता का सर? write a program using for loop to calculate factorial of a number. Factorial find out करायचा प्रोग्राम करायचा तुम्हाला using for loop. Clear? Yes or no? Hello. Yes, sir. हो सर. Okay, so we will you have to do it at your home, and then we will discuss it in next lecture. These two programs regarding the homework. Okay. So all of you try this at your home. If you have any doubt, you can ask. Okay. Now next topic that is actually वो first unit में होना चाहिए, but they are given in second chapter because other data types. If you can, if you go through that syllabus, another topic is there regarding chapter number 2, other data types, and in that other data types you also study list, tuple, and what? Dictionary. Okay. So
Anybody first tell me what is the definition of data types? What is definition of data types? Anybody? हेलो, डेटा टाइप पार्ट हुआ है ना हमारा पहले स्टार्टिंग में? यस सर. हाँ, so anybody can tell me the definition of data type? जब तक आंसर नहीं बताएंगे तब तक आगे नहीं जाएंगे. I am not asking about any what complicated things or that we have not covered up till now. I am simply asking about what is a data type that we have already covered in unit number 1. वेगवेगळ्या प्रकारचे डेटा आहे ते व्हेरिएबल स्टोर करू शकतो. आणि yes, data type are nothing but what? These are the different entities which have specific meaning. For example, integer. Integer are the numbers which don't have any decimals. The floating point numbers, the numbers which are having decimal points. Then complex number, that is 1 plus 3j type of yes. Then string, that is textual matter. So that type of data types are available. So basic data type तो हमने देखे थे integer, float, character, string and complex number. Okay. पर देखो अभी यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखा, screen is visible to all? Yes or no? Yes sir. Okay. So मैंने क्या लिखा? A is equal to 5, B is equal to 1 plus 3j. Then what I have written, C is equal to, for example, ऐसा. So these are the some basic data types. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Okay. So that we have already covered. Okay. So उसका हमने data type. So how to get the data type of that specific variable? तो variable तो यहाँ पे मैंने ABCD यहाँ पे लिखे. तो how we will know about whether that data type of 5 is A or data type of data type of A is integer and data type of B is complex. Data type of C is type yes. Type B. What are you using? Print. Yes. Oh, we have print a function. Print type in bracket, for example, C लिखा मैंने. So you will get the output likewise. So it will give you what? String. STR. तो जो भी डेटा मतलब जो भी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग टाइप मतलब जहाँ पे आपका टेक्सचुअल मैटर आता है, डबल कोट में जो भी वैल्यू लिखते हैं, सो दैट टाइप ऑफ वैल्यूज आर ट्रीट एज ए स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग के लिए पाइथन में str नाम का क्लास है. इस टाइप का क्लास इज देयर str, नॉट स्ट्रिंग क्लास इज देयर. उस क्लास का नाम str है. जैसे कि इंटीजर का नाम क्या है? int. व्हाट इज द क्लास ऑफ इंटीजर? int. यस और नो? यस. व्हाट इज द क्लास ऑफ d? फ्लोट. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फ्लोट. पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अभी यहाँ पे डबल कोट में लिखा है. तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट? str. Hello? str. Why? Because whatever you are written inside the double quotes, that will be treated as one string. Are you getting? Yes or no? Okay. Now you are getting what? Floating point number. That is your class is float. So these are what? Simple data type that on that data type you have to perform different operations. What? So what is if you want to store more than one value? देखिए यहाँ पे देखो. At one time this a value is a variable store how many values? One value. जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से लिखा a is equal to 2. So what will happen with respect to this now? A is equal to 10 ही print होगा सर. Yes. So यहाँ पे at one time how many value will be stored by that variable? Tell me how many values? 1. Yes. तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे? I will write one print statement. Getting 5 and 10. So what you are getting from these two statements? It will Anybody? replace the value. Yes, it is overwriting that 5 values by 10. मतलब at one time how many values are stored in that specific A? One value, na? Yes or no? One. Getting? Yes. So for to remove to make ये disadvantage जो है regarding ये नहीं, जैसे कि normally आपने C और C++ में देखा होगा, to store more than one value in single variable.
एरे कंसेप्ट कोई लोगों ने, जिन्होंने C++ पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा, एरे कंसेप्ट पढ़ा होगा किसी ने, ऐसा नो? Yes. Yes. So likewise, here also other data types are there. Some other data types are there in which we can store more than one value in single variable. We can store more than one value in single variable. तो देखो यहाँ पे पहला होता है उसमें list. So lists are used to store multiple items in a single variable. So lists are one of 4 built-in data types in Python used to store a collection of data. Those are tuple, set, dictionary. Likewise, मतलब ये 4 है total. उसमें से हमें we have to in our syllabus tuple is there, dictionary is there, and list is there. Okay, so we will see one by one those data types. Okay, so first one is list. So list कैसे create करते हैं? तो list create करने के लिए हम use करते हैं some variable का नाम तो सबको पता ही है कि we can give any variable name for any data, जो भी आप variable वहां पे लिखते हो. So it is a, what is the definition of list? So list is a definition of, I will write here. Other data type. Okay. So in that first one is list. So what is list? So list is a collection of elements. List is a collection of elements. Collection of elements. Okay. Having different data types. Having different data types. Okay. All of you clear with the definition of list? All of you clear with the definition of list? List is a collection of elements having different data types, and list is represented by square brackets. Which brackets? जो भी elements आप list में store करने वाले, so that elements you have to represented by square brackets. Okay, and elements are separated by comma. और मोर देन वाले एलिमेंट है, ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा. सेपरेशन पर्पस के लिए क्या लेते हैं हम? कॉमा. ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर विथ लिस्ट डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके. तो सी हियर, यहाँ पे एक एग्जांपल जो आपको मैंने पहले बताया था, यू कैन रेफर दिस WB स्कूल प्लेटफॉर्म, सो यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट दैट स्पेसिफिक bit or that specific topic that you want to learn from that online platform. Okay, तो यहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने L1 नाम दिया और यहाँ पे उन्होंने लिस्ट क्रिएट किया है. So this list having how many elements? How many elements are there in this list? Hello? 3. Yes, 3 elements. And all these 3 are what? All these 3 are what? String type, na? Data type of this. Yes, string. Yes. So we will run this. So for as per definition, what I have said in that specific definition, क्या बोला था मैंने? Having different data types also. मतलब ऐसा नहीं कि सारे string ही ले सकते. You can change those or you can mention other data types also. For example, I will do here. जैसे कि यहाँ पे मैंने create किया एक list 1, 4.5, I will take one complex number 4j, and I will take one string. Okay. So I will print this. So print L1. Okay. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay. So we will move forward and we will run this code. So all of you getting the elements of this list? 1, 4.5, 1 plus 4j and Amol. How many elements we have stored? Different data types are there. So first one is 1, second one is 4.5, third one is 1 plus 4j, and fourth one is what? Amol. That is string. Okay. Now, next thing that you have to remember. Now these elements are stored. That more than one elements are stored in this L1. Yes or no? Yes or no?
Yes, sir. Yes. So what we have to do? How they is stored in that specific list. So you have to remember जो मैंने already बताया था. List first index is always what? 0. What is that? Index of first index is always 0, and last index is always number of elements minus 1. All of you clear with this? All of you clear with this? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So first element क्या होता है? First element का index क्या होता है? Tell me what is the index of 1? 0. 0. Yes, perfect. What is the index of Amol? -1. 3. -1. 3. Yes, 4 minus 1. Getting? 4 is nothing but your number of elements. Getting? So how many elements are there? 4 elements are there. Okay. So that's why last index is always what? L of 3. So वो 1 by 1 check करेंगे कैसे होता है? Print in bracket L1 of, for example, 0. So what you will get here? Answer. L1 से तो हमें सारे मिले. Yes, you will get the answer 1. Yes, perfect. Then 1. So you will get what? 4.5. 4.5. Yes, perfect. Yes. If you are writing here 2. 1 plus 4. 1 plus 4j. Yes, 1 plus 4j. All of you clear with the this how to extract a specific index element from that list? समझ में आया सबको? Yes, sir. And how to display all the elements? सबको सारे element display करने होंगे तो simply write down that variable name. And if you want to extract, तो यहाँ पे लिखता हूँ. I will write here to display specific index value of that list, we use list name square bracket index. All of you clear the syntax? All of you clear with the syntax of displaying the specific index value? Yes, sir. Yes. So I think all of you clear with the how to create the list, how to display specific element of the list, what is the first element index of that specific list. Then second next point is how to extract or how to display specific index value with respect to that specific list. So all of you try this at your home. Okay. अभी now different operations हम देखेंगे इसके regarding. Okay. So access elements actually हमने देखा अभी. देखो यहाँ पे यही किया ना हमने. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. अभी इसमें एक होता है नेगेटिव इंडेक्स भी होता है. नेगेटिव इंडेक्सिंग. So देखो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड. That is -1 refers to the last item, -2 refers to the second last item. अभी वो यहाँ पे करके देखेंगे. So tell me, what will be the output of this code? तो दो टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो अभी हमने देखा, और सेकंड देखा हमने नेगेटिव. जनरली ये नेगेटिव इंडेक्सिंग आपने एरे भी ऐसे होता है ना. यस और नो? एरे जो आपने देखा होगा, ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लाइक दिस. यस और नो? यस और नो? हेलो, जिन्होंने C++ पढ़ा है, यस पढ़ा है. यस. सो अभी देखो वहां पे नेगेटिव इंडेक्सिंग होता नहीं है, पर यहाँ पे होता है मतलब कैसे? -1 रिप्रेजेंट नथिंग बट योर लास्ट इंडेक्स. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए मुझे? L1 of -1 लिखा है. यस, अमोल इज द आंसर. परफेक्ट. क्लियर है? एम आई क्लियर? यस. Yes, sir. I am writing here -2. So what answer? 4.5. -2 को 1 plus 4 जाएगा ना सर? क्या आएगा? सर -2 को 1 plus 4 है ना?
-1 इज नथिंग बट व्हाट, लास्ट एलिमेंट, उसके बाद वाला -2, उसके बाद वाला -4, -4, सो -3 क्या होगा इसके हिसाब? 4.5. 4.5. यस, परफेक्ट. गेटिंग? एम आई क्लियर? हाँ, तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में हो सकते हैं. सो दे विल गिव यू वन लिस्ट एंड वन स्टेटमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन का कोड होगा. व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड? लाइकवाइज कोड विल बी देयर. एक ही लाइन होगा, एक लाइन में ये होगा, एक लाइन में ऐसा होगा, या लाइकवाइज ऐसा होगा, या मोर देन 2 स्टेटमेंट्स भी होंगे. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर विद द नेगेटिव इंडेक्सिंग आल्सो. एम आई क्लियर? Yes, sir. Am I clear? Yes, okay, I will move forward. For example, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किए. Okay. Now I want specific range. मतलब from this to this, I want to display some elements. Okay. So what I will do here. ये तो हो गया, पूरा भी डिस्प्ले किया हमने, स्पेसिफिक भी किया. अब अभी क्या करना है मुझे? L1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 2:5. So इससे क्या होता है? हैश कमेंट डालते हो यहाँ पे. ओके. सो इससे हम क्या करें? स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक इंडेक्स रेंज एलिमेंट्स विल डिस्प्ले. और we can called it slice operation. Slice operation. Okay, am I clear? हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है मेरे L1 के अंदर. What I have written in L1 inside L1 square brackets 2 to 5. तो हो गए क्या? 2:5 ना? हेलो. येस, अरे बोला तुम्ही बोला, मला माहिती आहे 2 to 5. सेकंड लास्ट लेक्चर आहे, मला माहिती आहे, पण झोपायचं नाही तुम्हाला. आणि अजून एक लक्षात ठेवा, व्हेरी लेस टाइम इज गिवन फॉर दिस सेमिस्टर. So hope you will understood our feelings also, because we have to cover this syllabus within a time, also cover all the things. अभी ये सारी चीजें आपके बुक में कहाँ पे भी आपको मिलेगी नहीं सारी. दिस इज स्लाइसिंग वगैरह, ये बाद में आपके चैप्टर में है, बट आई विल टेल यू राइट नाउ ऑल्सो इटसेल्फ. आपको नेगेटिव इंडेक्स में कहाँ पे मिलेगा नहीं, बट as per exam point of view, that can be a tricky question also asked in your exam. That's why I have told you to refer this online platform also for this programming. Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया 2. So what is the meaning of 2? 2 का मीनिंग होता है कि इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होगा. वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से. कोलन का मीनिंग मतलब 2 से स्टार्ट होगा, कोलन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एक्सक्लूड करते वहां तक का जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा. मतलब 5 एक्सक्लूड होगा, 5 छोड़ के क्या क्या डिस्प्ले होगा फिर बताओ मुझे. इंडेक्स नंबर 2, यस, 1.4J एंड अमोल ना? Yes, sir. Sir, 78. Yes. 78B. Yes. Getting? Am I clear? Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay. So we'll do हाँ बोला. कॉलम नाही समजलं मला. 5 add to 5 चं काय काम आहे? कितपर्यंत ना? 5 रेंज. अरे मला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल किती इंडेक्स इथे सांगायचे. हाऊ मेनी इंडेक्सेस आर? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. टोटल 5 इंडेक्स आहे ना? 0 पासून स्टार्ट झाली की बरोबर. पण आय वॉन्ट 2 to 4 डिस्प्ले करायचे मला फक्त एलिमेंट. तर त्यासाठी काय करू शकता तुम्ही? 2:5. समजलं? फॉर एक्झाम्पल 3:5. मला 3 पासून एलिमेंट डिस्प्ले करायचे. मी काय करायचं? 3:5. तर काय डिस्प्ले होईल? अमोल आणि 78. 67 का नाही झाला डिस्प्ले? टेस्ट सांगतोय तुम्हाला मी. 67. हा टेस्ट सांगतोय मी. एक्सक्लूड करतो ना तो रूल आहे ना त्याचा, स्लायसिंगचा रूल आहे तो. समजलं का? म्हणजे लास्ट एलिमेंट पकडत नाही का? हा, येस, लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड होतो त्यातनं. जसा तुझा रेंज फंक्शन यूज केलं बरोबर आहे ना? रेंज फंक्शन मध्ये काय होतो? लास्ट एलिमेंट 1,6 लिहिलं लिस्ट. त्याचा मिनिंग काय असतो?
6 ला कंडिशन काय होते, फॉल्स. गेटिंग. तसं तिथे 3 column 5 चा मिनिंग काय आहे, 5 विल बी एक्सक्लुडेड. सो ऍज पर तुला जर 67 पाहिजे तर तुला काय करावं लागेल, तिथनं 5 काढायला लागेल, यू विल गेट 68. गेटिंग. समजलं सर. गेटिंग. एम आई क्लियर? यस सर. यस. और थिंग है इसमें, ये बहुत से मॉडिफिकेशन होते हैं इसमें. अभी यहाँ पे एक तो ये दो बताइए, ये क्लियर है अभी सबको? मैंने कुछ भी नहीं डाला है. नाउ आई विल डू वन थिंग. नाउ टेल मी द व्हाट विल बी द आंसर हियर. कोलन के पहले भी कुछ नहीं लिखा, कोलन के बाद भी कुछ नहीं लिखा. पूरी लिस्ट आएगी, सारे लिस्ट है, सारे एलिमेंट आएंगे. गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. एम आई क्लियर? ये सारे नोट डाउन करके लो आपके मतलब आप जहां भी नोटबुक में कर रहे हो या कहाँ पे भी. दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ आई विल डू वन थिंग. नाउ टेल मी द आंसर. 0 से 4. Yes, 0 to 4. Yes. When we are not mentioning anything, it will directly consider as a 0 index. Yes, perfect. Getting 1, 4.5, 1.1 plus 4j, Amol and 78. 5 भी exclude है, वो तो obviously rule है, वो तो वहाँ पे exclude होगा ही वो 67. Yes or no? Clear? Yes, sir. Am I clear? So all of you getting clear with all the slicing elements with respect to that list? Yes sir. Yes. So can we move forward with respect to different operations with respect to list? Yes sir. ओके, यहाँ पे दिया है, देखो आप, मैंने जो आपको करके दिखाया ना वही सारे एग्जांपल इसमें है. ओके, एक देखो कोलन 4, 2 कोलन. ओके, हाँ एक इसका भी करके देखेंगे, निगेटिव का भी है, वो भी देखेंगे. देखो अभी निगेटिव में समझ में आ रहा है, देखो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. -4 मतलब कौन सा होगा यहाँ पे? ऑरेंज. यस और नो? यस और नो? 4j. Sorry. -4 colon -1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4 इंडेक्स? अभी बताया था ना ऑरेंज. यस. एंड -4 to colon -1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? -1 मीन्स व्हाट? लास्ट एलिमेंट. सो लास्ट एलिमेंट मैंगो. मैंगो के पहले कौन सा है? मेलोन. सो व्हाट इज आंसर? ऑरेंज, कीवी एंड मेलोन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करेंगे. -6. टेल मी द आंसर नाउ. Banana. Only banana? Banana, cherry, orange, kiwi, melon. Yes. And if you are not writing here something, so what will happen? Mango पर्यंत. Banana पासून mango पर्यंत. हाँ. Getting? Yes or no? Yes आलं sir. समजलं का? Negative indexing पण? हो sir. Am I clear with? Okay. So these are very important thing with respect to your MCQs regarding list topic. List, tuple and dictionary. Definitely आपको बताता हूँ 2 plus 2 4. 4 to 5 questions will be there on list and tuple and dictionary. So all these things are very important with respect to list, tuple and dictionary. 1, 2, 3, 4. I think regarding list starting point, I think you don't have any doubts. 1, 2, Okay. 3. Hello. Yes No, sir. sir. Am I clear? Okay. So we will move forward. हाँ बोला. या आपला या एक्झाम्पल आता तुम्ही घेतलाय जे डुडल वरती, त्याच्यावरती -4 ऍड टू -5 घ्या. ते आउटपुट काहीच -4 दिसत नाही. हा कसं दिसत? -4. हा मग कसं दिसलं आउटपुट सांग मला तू. कसं दिसलं सांग बरं आउटपुट. कॉमन सेन्स आहे याच्यामध्ये. पहिलं वाली मोठी पाहिजे ना मला sir. सांग -4 पहिला तो. हा काय झालं? पहिलं वाला मोठं पाहिजे ना, म्हणजे -5 आधी गेल्यानंतर. Perfect. Common sense. Yes. That is common sense. अरे मला सांग -4 नंतर -5 आहे ना? येस सर. मग तू कसं काय म्हणतो मग काहीच नाहीच येणार ना, आउटपुटच येणार नाही ना, रेंज आहे ना ती. -4 नंतर कुठला येतो तिकडे? -3 येतो ना? येस और नो? हो. येस सर. येस और नो? येस. सो दॅट यू हॅव टू. त्या गोष्टी या सिंपल गोष्टी या तुम्हाला समजल्या पाहिजे ऍक्च्युली तुमच्या लेवलला. ते काय येत नाही म्हणजे पेपर मध्ये पण आपल्याला विचारू शकतात ना असं, मग तिथं नाही येणार आउटपुट नाही विचार. ते क्वेश्चन ऍक्च्युली येत नाही.
कारण त्याला काय ऍक्च्युली मिनिंगच राहत नाही त्या गोष्टीला जनरली. हा येस, ओके, एम आय क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. बोला Yes, काहीतरी sir. बाकीच्यांनी. ओके, हो सर. सो नाव वी विल गो फॉरवर्ड. आता दुसरा टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये ते चेंज आयटम व्हॅल्यू. आता इकडे लक्ष द्या. आता इथे काय केलंय बघा त्यांनी. व्हॉट दे ऑर्डर? ठीक आहे, आपण आता इथे करून पाहू. फॉर दिस एक्झाम्पल इथेच करू, कशाला टाईप करायचं एवढं. व्हॉट इज हॅपन विथ दिस आउटपुट? क्या हो गया आउटपुट सर में? बनानाचं हे इंडेक्स 1 Yes. होता तर त्याच्या जागी ब्लॅक करंट झाला. Yes, we So have change replaced the झालं, value of interchange index. झालं. Yes, yes, yes. If you are doing this, now what will happen with respect to output? Tell me. तर चेरीच्या जागी ब्लॅक करंट येईल. Yes, yes, perfect. So if you have to change the specific value of that specific index, you will get the, you have to mention like this, list name followed by what? यहाँ पे लिखता हूँ. To change specific index value. Okay. So for example यहाँ पे हमने 2 का करके देखा. यहाँ पे मैंने what will happen? एरर cannot change now. Getting? क्या एरर है? Yes sir. लिस्ट List असाइनमेंट assignment टेक आउट index ऑफ out रेंज of बिकॉज range. हमारा इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस लिस्ट? यस 2. तो ऑब्वियसली हम ज्यादा कुछ डालेंगे उसमें. तो अभी ये चीजें आपको याद रखना, मतलब ये आपको समझ में आनी चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग योर व्हाट लिस्ट इज ऑफ 3 elements, so obviously last element is 2, last index is 2, and when you are forcefully doing what, assigning the element which are not assigning the element to the index which is not there in your list, so you will get the error. So error भी इस टाइप का है, list assignment index is out of range. Am I clear? Yes sir. Am I clear? Okay, okay. So ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है घर पे. ओके, तो ये उन्होंने रेंज वाला किया है. क्या हो गया इस केस में? बनाना एंड चेरी इज रिप्लेस बाय वाटरमेलन. एम आई क्लियर? ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन. एम आई क्लियर? यस सर. हाँ, जैसे कि यहाँ पे रेंज डाला ना हमने 1:3, तो 1 नंबर पे इंडेक्स पे बनाना था, तो बनाना रिप्लेस बाय ब्लैक करंट, एंड 3 इज नथिंग बट योर दैट रेंज थर्ड. तो थर्ड के पहले 3 के पहले 2 होता है, तो 2 में क्या स्टोर है? चेरी. सो चेरी इज रिप्लेस बाय वाटरमेलन. एम आई क्लियर? Yes sir. ओके. यस. सर नाही समजलं. विच वन? ओके, ठीक आहे. काय लिहिलं बघा आता, वाच स्टेटमेंट वाचतो पहिलं. ऍपल ब्लॅक करंट वॉटर. ते ठीक आहे, ते ठीक आहे. खालचं स्टेटमेंट जे आपल्याला पाहिजे, जे आपण आता पाहत होते. दिस लिस्ट इन ब्रॅकेट 1:3. तर 1:3 म्हणजे काय? 1 पासून 3 पर्यंतचे एलिमेंट चेंज करायचे. पण म्हणजे 1:3 म्हणजे किती एलिमेंट चेंज होणार? हाऊ मेनी एलिमेंट्स विल बी चेंज? 2 ना, बिकॉज 3 इज एक्सक्लुडेड ना. येस ऑर नो? मग 1 ला काय सांग मला तू तिथे आता. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऍट 1 इंडेक्स? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऍट 1? येस, बनाना. सो बनाना रिप्लेस बाय व्हॉट? ब्लॅक करंट. येस, ब्लॅक करंट नंतर कॉमा करून काय घेतलंय मी? तुम्ही चेरी घेतलं. नो नो नाही, इन आवर अपडेशन व्हॅल्यू, अपडेशन स्टेटमेंट मध्ये, चेंज स्टेटमेंट मध्ये, सेकंड स्टेटमेंट मध्ये मी कुठे वॉटरमेलन घेतलंय ना? वॉटरमेलन. आणि मग तिथे ओरिजिनल लिस्ट मध्ये सेकंड इंडेक्सला कुठली व्हॅल्यू आहे? 012 चेरी. चेरी. सो चेरी विल बी रिप्लेस बाय वॉटरमेलन. सो योर आउटपुट इज व्हॉट? ऍपल, ब्लॅक करंट, वॉटरमेलन, ऑरेंज, किवी अँड मँगो. क्लिअर आहे? येस सर. ते लास्ट आहे ते एक्सक्लूड होतं ना 3. हा, मग झालंच ना एक्सक्लूड. हो. येस. then this is also very important with respect to your
एग्जाम पॉइंट होगा। ये हमने करके देखा था, कहाँ पे देखा था, किस असाइनमेंट में देखा था ये अपेंड, विच असाइनमेंट? 3। यस, थर्ड असाइनमेंट में हमने जहाँ पे क्या था हमारा मार्क्स एंड एक मार्क्स वाला असाइनमेंट एंड एक नंबर वाला असाइनमेंट, जिसमें हमने फॉर लूप करके जो एक लिस्ट लिया था, लिस्ट में हमने अपेंड करते जा रहे थे। यस और नो? यस और नो? यस सर। अरे बोला की झोपले का? ओके, कौस्तुभ बाकीचे कुठे? बाकीचे कौस्तुभ, सीएच ओनली आर ऑनलाइन आय थिंक, अदर्स आर फिजिकली प्रेझेंट बट मेंटली इज नॉट प्रेझेंट। हो सर, मी पण आहे. सर्व आहे. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, ओके. सो वी विल मूव फॉरवर्ड. आता इथे बघा, ओके यस, वन डे आउट एंड द वन लिस्ट इज टेकन. लिस्ट तो सबको अभी ये पता है, ये तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. देखो यहाँ पे क्या किया है. नाउ दीज ऑल आर द फंक्शंस और इनबिल्ट फंक्शन विच आर गिवन बाय पाइथन फॉर योर list operations. Getting? Am I clear? Am I clear? These are the not the function that we are using ourselves. ये हमने कुछ किया नहीं है. These are the function which are given. देखो यहाँ पे मैंने append 1 किया. So whether this is executed, चलेगा? Error. Yes. क्या होगा? List object has no attribute. Yes. Getting? Because append नाम का append 1 नाम का attribute ही नहीं है list में. So that तो आपको ये याद रखना है, सारे स्मॉल के लोअर केस में होते हैं सारे फंक्शंस. और बात याद रखनी है, ऑल द रिजर्वर्स विच आर अवेलेबल इन पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स, ये दो छोड़ के सारे क्या होते हैं? लोअर केस में होते हैं. ट्रू एंड फॉल्स में क्या होता है? पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस. सो दैट थिंग. अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि अभी पहले हमने देखा थी अपडेट कैसे करनी थी वैल्यू, बट हमें क्या करना है, जो लिस्ट हमने क्रिएट की है उसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने विदाउट डिक्लेयरिंग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. मतलब यहाँ पे नहीं चेंज करना मुझे. आफ्टर फर्स्ट लाइन आई हैव टू चेंज इन योर कोड, मतलब कोड में मुझे कहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड होता है. सो अपेंड से क्या होता है, ऑलवेज योर एलिमेंट विल बी अपेंड एट द लास्ट. कहाँ पे ऐड होगा वो एलिमेंट? लास्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, आपका जो भी ऐड होगा अपेंड से, लास्ट एलिमेंट वो होगा. कौन सा? जो आप ऐड कर रहे हैं अपेंड से. मतलब ऑरेंज कहाँ पे ऐड होगा आपका? चेरी के बाद. Am I clear? Yes, yes. Getting? How to add the element at the last of your existing list? Am I clear? Am I clear? Yes, sir. अरे एस म्हणायला तुम्हाला काय, मी एवढं बोलतो, तुम्हाला एस बघायला किती वेळ लागतो रे? हा, बोलत जा जरा. यहाँ पे I will take one another. So what will happen now? Tell me. Orange नंतर पेअर होईल सर. Yes, yes, yes. Perfect. So these type of questions will be also there in your exam. Am I clear? जितने भी आप ऐड करते जाएंगे वो एलिमेंट कहाँ पे ऐड होते जाएगा? लास्ट में. Am I clear? Yes, sir. Yes sir. हाँ, इसलिए हमने यूजर डिफाइन वाला जो कोड किया था, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स लेने थे हमें. In that case, what we have done? We have taken one empty list, we have applied for loop, and one by one we are inserting that element in that specific list by using append. Am I clear? Yes Yes, sir. Okay. Yes sir. Yes. Okay. So next win. आता हे तर झालं आपलं की लास्ट एलिमेंट, पण मला मध्ये कुठेतरी इन्सर्ट करायचं आहे. So for that also they have given one thing, one function. That function name is insert. Am I clear? अभी हमें क्या करना है, बीच में कहाँ पे ऐड करना है. जैसे कि अभी मुझे फर्स्ट इंडेक्स ऑरेंज चाहिए, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट. अभी इंसर्ट के पैरामीटर देखो, अभी यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जो भी फंक्शन उन्होंने दिया रहता है. ये देखो, अभी जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन में वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू पास पैरामीटर्स. तो जैसे कि अपेंड फंक्शन के लिए एक पैरामीटर पास करना है, उसका होता है, वो पैरामीटर होता है द नंबर द एलिमेंट दैट यू हैव टू एंटर इन योर लिस्ट. और यहाँ पे इंसर्ट में दो पैरामीटर कौन कौन से? इंडेक्स, जहां पे आपको वो एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो इंडेक्स कॉमा एलिमेंट दैट टू बी इंसर्टेड ऑन दैट इंडेक्स. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes sir. Yes, sir. यस. तो यहाँ पे देखो क्या किया, दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट 1 कॉमा ऑरेंज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? योर एग्जिस्टिंग लिस्ट इज दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी. So here your first element is banana, but what will happen after applying this instruction? Banana will be shifted to second index. Am I clear?
Am I clear? Yes, sir. Yes. Now tell me what will happen. Tell me the answer. एप्पल ऑरेंज पेरू बनाना ऑरेंज आगे चले जाएगा और Apple, orange, पेरू पेरू banana. Apple, orange, peru, banana, cherry. Am I clear? यस सर सर Yes, yes, yes. Yes, sir. क्योंकि अपडेटेड लिस्ट वाला व्हाट अपडेटेड लिस्ट में ऑरेंज इज द व्हाट नहीं बनाना इज द व्हाट सेकंड इंडेक्स ना. एम आई क्लियर? हाँ सर 0 बरोबर ना. इथे करून पाहू. एक मिनिट. आणि अजून एक लक्ष द्या इथे इनपुट फंक्शन म्हणजे ऍक्च्युली या प्लॅटफॉर्मला अजून त्यांनी अपडेट होतं ऍक्च्युली. तर इथे इनपुट फंक्शनला तुम्हाला प्रॉब्लेम होतो. इनपुट फंक्शन अप्लाय करत नका जाऊ. इथे इनपुट फंक्शन करायचे असते तुम्ही JDoodle वापरा, गुगल कोलॅब वापरा. नंतर ते अजून एक मी दिलाय पायथॉनचा एक सेपरेट एक दिला होता तुम्हाला, तो वापरा. पण नॉर्मल बाकीचे विदाउट इनपुट फंक्शन असेल तर तुम्ही हेच यूज करा प्रॅक्टिस पर्पज साठी सुद्धा, म्हणजे ऑनलाईन प्रॅक्टिस. आलं का? समजलं का? बघा बनानाला शिफ्ट झाला पुढे आणि त्याच्याऐवजी काय आला? पेरू. एम आय क्लिअर? पेरू. पेरू हा येस. सो दॅट थिंग यू हॅव टू हे असं करून पाहिजे. ऍक्च्युली कसं असतं ह्या प्रोग्रामिंग मध्ये सगळ्या गोष्टी कशा असतात, वी हॅव टू डू इट आवर सेल्फ. म्हणजे कसं मॉडिफाय सम व्हॅलिडेशन व्हेरिफिकेशन दॅट यू हॅव टू डू इट ऍट युअर ओन. म्हणजे असं केलं तर कसं होईल असं हे आपल्याला, पण त्याच्यामध्ये काही गोष्टीच करायच्या असतात. जसं की ज्या गोष्टी होण्यासारख्या नाही त्या करून पाहिजे नाही. अलग लक्षात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता 1, ऑरेंज, असं काहीतरी दिलं, हे चालेल का? नाही सर. नाही चालेल सर काय? नाही. ह्या गोष्टी नाही, या कॉमन सेन्स वाल्या गोष्टी असतात. ज्या गोष्टी आलं लक्षात काय आलं बघा, मी तुम्हाला जे आता बोललो होतो, इन्सर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्युमेंट गॉट 4 आर्ग्युमेंट. एम आय क्लिअर? Am I clear? Yes, sir. Because at the time of while creating this insert function in Python libraries, they have passed only 2 parameters, and that 2 parameters is one is index and another one is value at that index. So दो इंडेक्स है फिर भी 2 पैरामीटर फिर भी हम वहां पे फोर्सफुली कितने डाल रहे हैं? हाउ मेनी वी आर पुटिंग देयर? यस और नो? 4 कितने डाल रहे हैं वहां पे? 4 डाल रहे हैं. यस और नो? सो ऑब्वियसली वहां पे देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वही है, वहां पे डायरेक्टली वो दे रहा है. इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स, यू आर इंसर्टिंग 4 आर्गुमेंट्स. एम आई क्लियर? हाँ, तो ये चीजें, हाँ, तो इनबिल्ट फंक्शन के लिए ये चीजें करके देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज अ कॉमन सेंस. जो चीजें आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक थ्रू करनी है दैट यू हैव टू डू द व्हॅलिडेशन, बट डोंट डू एनिथिंग विथ रिस्पेक्ट. मतलब जे इनबिल्ट फंक्शन त्यांच्याशी खेळत बसायचं नाही, ते आहे तसेच यूज करायची. एम आय क्लियर? आता इथे मी समजा हे केलं, व्हॉट विल हॅपन? व्हॉट विल हॅपन? सर चेरीच्या जागी 5.6. येस, पेरूच्या जागी 5.6 येईल. चेरी पुढे जाईल. कारण की लिस्ट मध्ये सगळ्या टाइपचा डेटा स्टोअर. येस, ऍपल, ऑरेंज 5.6, बनाना अँड चेरी. तर लक्षात ठेवा, while you are inserting the data of string, you have to mention that string in double quote or single quote. Am I clear? And while you are inserting that numbers, floating point numbers, complex numbers, that you have to mention in normal without double quotes or single quotes. 1 plus 3j. So we will run this and we will get output for this. Apple, banana, no, apple, orange, 1 plus 3j, banana, cherry. So I think hope you all understood the basics of that list and how to add the element in that list by index also and by default last element how to add. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So all of you do the homework that we will stop here. अभी बस हो गया, ज़्यादा हो गया ये टॉपिक आज के लिए. So we will move forward regarding remaining topics of list. उसमें देखो क्या क्या है. यहाँ पे बाकी है, एक तो एक्सटेंड बाकी है. उसके बाद हाँ एक्सटेंड ही बाकी है, एक टपल वगैरह बाद में देखेंगे. उसके बाद रिमूव लिस्ट है,
लूप लिस्ट आपको एक्चुअली नहीं पूछेगी, पर वी विल सी हाउ टू do that specific remove list and how to iterate your list using loops. Actually iterate किया था हमने, जो हमने ये देखा ना कौन सा append वाला एक फंक्शन प्रोग्राम देखा था हमने, इसमें किसमें, असाइनमेंट नंबर 3 में, उसमें फॉर लूप यूज करके हमने किया था वो, यस और नो? Am I clear? Yes. अभी ये डिलीट जिन्होंने अभी ये किया होगा कौन सा वाला क्विज नंबर 1 सॉल्व किया होगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग हाउ टू डिलीट अ वेरिएबल, हुआ था क्या? हाउ टू डिलीट, यस यस। तो ये अभी यहाँ पे देखने वाले हैं हम डिलीट फंक्शन यूज करके। तो एक्चुअली वो गलती से मेरा वो क्वेश्चन एक्चुअली वहां पे बताने के पहले आपको मैंने उसमें डाला, ठीक है, कुछ नहीं है, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आई थिंक जिसको भी अभी कुछ डाउट्स है, दे कैन गो टू द WC स्कूल, ट्राई दिस कोड रिगार्डिंग लिस्ट, and if you have any doubt you can ask me personally on WhatsApp also, okay, or call me anytime. Am I clear? Yes sir. Am I clear? So for today's work I have given you 2 programs regarding what leap year wala program, and one is factorial of 2 number, factorial of a given number. So all of you do that homework at your home, and we will discuss that to do those 2 programs in tomorrow's lecture. Okay? Yes sir. Yes or no? Sir. And yes, we will cover in tomorrow's lecture we will cover assignment number 5, एक ही कवर करेंगे बिकॉज अभी टाइम लेफ्ट, बहुत टाइम अभी अवेलेबल है हमारे पास, तो वी विल फॉर रिगार्डिंग लैब असाइनमेंट तो एक ही करेंगे कवर, एंड दैट विल बी परफॉर्म इन योर लैब सेशन। आपको ही करना है, आपको भी करना है उसमें मेरे साथ, तो दैट असाइनमेंट 5th असाइनमेंट वी विल कवर, एंड टुमारोज लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद अदर फंक्शंस ऑफ दैट। तो ये सारे फंक्शन आपको याद रखते हैं। तो आप कौन कौन से फंक्शन देखे हमने इनबिल्ट, बताओ मुझे। 2 फंक्शन देखे हमने रिगार्डिंग स्ट्रिंग लिस्ट। फर्स्ट वन इज append, yes, and second one is insert. append से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका एलिमेंट जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो कहाँ पे ऐड होता है, लास्ट में, यस एंड में होता है। एंड इंसर्ट में हमें जहां पे चाहिए वहां पे हम इंसर्ट करके वो एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। सो दैट पार्ट यू हैव टू ट्राई एट योर होम, एंड दैट होमवर्क दैट आई हैव गिवन रिगार्डिंग 3 होमवर्क है, एक रिगार्डिंग नेस्टेड फॉर लूप, एक रिगार्डिंग इफ फॉर, एंड एक दो रिगार्डिंग आपके फॉर लूप। ओके, सो गिव योर अटेंडेंस। रोल नंबर 1, both divisions present. ओके, रोल नंबर 2, C2 present, B2 present, sir. Roll number B3 3 present sir. Okay, roll number 4, C4 present, sir. okay, roll number 4 C4, C4 present, sir. okay, B4 present, 5, roll number 5, C5 present, B5, okay, roll number 6, C6 present, sir. B6 present, sir. okay, C6, C6 present, sir. okay, 7, roll number 7, yes, B7 present, C7 present, roll number 8, C8 present, sir. 7 number I think absent in first lecture, na Swapnil? Yes, sir. Okay, roll number 8, 9 B present, okay, 10, roll number 10, C10 present, sir. okay, B10 is also present, roll number 11, C11 present, sir. okay, B11 is also present, roll number 12, 12, C12 present, B12, okay, 13, B13 present, sir. okay, B13, C13 is present, B13, okay, 14, B14 present, C14, C14 present. 15, Present, sir. 16, roll number 16 present, B16, 17, C17 present, sir. B17 is also present, 18, C18 present sir. okay, B18, 19, B19 present, C19 present, 20,
C20 present. Okay. B20 absent. 21, 22, 23, B23. Okay. 24, yes. 25, okay. 26, B26, B27, B27, 28, okay. 29, 30, B30, B30, okay. 31, C31 present, sir. okay. 32, B31 present, sir. okay. 33, yes, yes. 32, Sir, C32 present. C32 okay. present. 30, yes, yes. 33 present. 34, B34, B34 present, yes, sir. yes. 35, 35, okay. Present. 36, yes. B36 also present. 37, yes. 38, yes. B38 absent. 39, okay. 40, okay. C40, 40, C40, okay. 41 present. 42, B42, okay. B42, 43, 44, C44 present, sir. okay. B43, okay. 45, Sir, B45, B45 present, sir. okay, okay. 46, okay. 47, 48, B48 present, sir. okay. 49, B49, okay. 50, 50, 51, 51, C51 present, sir. okay. 51, 52, 52, B52, 53, 53, 54,